In today's video, we are going to continue with our discussion on differentiation. So today the topic will be what are the different kinds of rules that we have for differentiation. So product, quotient rule, sum, addition, what is higher order differentiation. ये सब कुछ हम लोग cover करने वाले हैं. So guys, for those of you who have already been with me, so thank you so much. And for those of you who are new to this channel, please consider subscribing to my channel. In this channel, right now we are doing a MME1 series, which is a course for semester 1 economics course for students. So if you are someone who is somewhat connected to the field, this might be very, very relevant for you. So please consider checking out different playlists that I have made for you guys. So without further ado, let's get started and let's start talking about different kinds of rules that we have for differentiation. So let's get started. So we will talk about different kinds of rules जो हम लोग differentiation करते time we have to keep in mind. So wherever there is a need of proof, I will do the proof as well, and wherever I just need to explain the concept, I will do that. Okay. All right. So सबसे पहले बहुत ही बेसिक से स्टार्ट करते हैं. Like what are the basic चीजें. तो सबसे पहले तो I would like to remind you again of what is the definition of differentiating at a particular point. क्योंकि वो definition ही बार बार हम लोग use करने वाले हैं either for proving or for other general purposes also. Okay. So जब भी आप बोलते हो कि आप किसी फंक्शन को differentiate करना चाहते हो किसी भी एक particular point पे, so this is what you mean. So basically we simply want to say that अगर आप बोल रहे हो कि कोई एक फंक्शन है f, you want to differentiate it at a particular point x, so you want to say what, that आपकी जो लिमिट है as h tends to 0 of fx plus h minus fx divided by h, ये जो particular लिमिट है ये exist करती है and it has some defined value. Okay. So agar if this limit exists, we say that आपका जो function है f, this is differentiable at a particular point x. Okay. सो अब आपका फंक्शन जो है बहुत ही अलग अलग तरीके के फॉर्मेट्स फॉर्म्स ले सकता है. सो उस केसेस में अलग अलग सिचुएशंस में आप किस तरीके से डिफरेंशिएशन को कैरी आउट करोगे. सो सबसे पहली चीज तो ये है, द फर्स्ट रूल दैट वी हैव इज, सपोज आपका फंक्शन जो है वो एक कांस्टेंट फंक्शन है. ठीक है. तब उस केस में डिफरेंशिएशन किस तरीके से होगा. सो इफ f इज द कांस्टेंट फंक्शन suppose it is the function fx equals to capital A. Capital A is any constant. So suppose आपका जो function है वो एक constant function है, तो उस केस में आपका differentiation क्या होता है, then the derivative f prime x is equals to what? It is equals to what? I'll take a pause for some time and I would let you guess. So अगर आपका फंक्शन कांस्टेंट है, सो fx की भी सेम वैल्यू है, fx प्लस h की भी सेम वैल्यू है. सो दोनों वैल्यूज अगर सेम है तो अगर आप उनको सब्ट्रैक्ट करोगे तो व्हाट आर यू गोइंग टू गेट? 0, राइट. सो दिस पर्टिकुलर डेरिवेटिव इज गोइंग टू बी इक्वल टू 0. ओके. दैट मीन्स अगर आपका फंक्शन जो है दैट इज अ कांस्टेंट, उसका मतलब ये है कि आप जब भी डिफरेंशिएशन करोगे that is going to be 0. So it is also like saying that अगर मैं डायग्रामेटिकली ड्रॉ करके देखूं और मैं बोलूं कि मेरा फंक्शन जो है वो कांस्टेंट है. ठीक है. इसका मतलब क्या है कि सपोज मेरा फंक्शन कांस्टेंट होने का मतलब है, लेट्स से मेरा फंक्शन जो है वो कुछ इस तरीके का है, fx equals to 2. Okay. So this is my x axis and this is f function, this is fx एंड fx इक्वल्स टू 2 है फंक्शन की वैल्यू. ठीक है. सो बेसिकली क्या करना है इस तरीके से, दिस इज बेसिकली द लाइन दैट इज गोइंग टू बी. ठीक है. सो दिस इज 2,
सो आपको कोई भी एक पॉइंट मान लो 1 पे निकालना है कि डिफरेंशिएशन क्या है, ठीक है, व्हाट इज एफ प्राइम 1 आपको निकालना है। तो एफ प्राइम 1 बेसिकली क्या होगा, यहाँ पे ये जो भी कर्व है इस पे जो भी आप टेंजेंट बनाओगे उसकी स्लोप, ठीक है। सो यहाँ पे ये जो भी कर्व है इस पे जो भी आप टेंजेंट बनाओगे वो एग्जैक्टली यही लाइन होगी, राइट। और ये जो लाइन है उसका स्लोप क्या होने वाला है, उसका स्लोप होने वाला है 0, बिकॉज इट्स अ फ्लैट लाइन, राइट। इट्स अ लाइन विच इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस, सो उस लाइन का जो स्लोप है वो 0 होगा। इसीलिए जो आपका डिफरेंशिएशन है दैट इज ऑल्सो 0। सो वेर एवर योर फंक्शन takes a constant value, wherever whenever you have a function which is constant, आपका जो डिफरेंशिएशन है वो 0 है। दैट मीन्स जो भी आपकी टेंजेंट लाइन है उसका स्लोप क्या है, 0, इट्स अ फ्लैट लाइन। ओके, दैट इज द फर्स्ट रूल दैट यू कैन क्विकली यूज। आपको कोई लंबी चौड़ी कैलकुलेशंस करने की जरूरत नहीं है टू establish this particular fact। ओके, सो कहीं पे भी अगर आपको दिया हुआ है कि फंक्शन कांस्टेंट है, सो डिफरेंशिएशन ऑटोमेटिकली बिकम्स 0। ओके, लेट्स मूव ऑन टू दी अनदर अनदर रूल विच इज सेकेंड रूल। सो सपोज आपके पास एक फंक्शन था y इक्वल्स टू एफ एक्स, ठीक है। अब आपने क्या किया, अब ये जो फंक्शन है कुछ नहीं किया एग्जैक्टली आपका, आपने एक नया फंक्शन बनाया, आपका नया फंक्शन एग्जैक्टली सेम है, बस आपने उसमें कुछ एक कांस्टेंट ऐड कर दिया। तब what happens to differentiation, we want to see that। So basically supposing you add a constant, so adding constants to a function will basically how does that impact the derivative, ठीक है। so अगर आप constant add करो एक function में, then so basically suppose आपका एक नया function है y equals to capital A plus fx, ठीक है। पहले आपका फंक्शन था ये, अब आपका नया फंक्शन है कि ये फंक्शन तो आपका पुराना फंक्शन है ही, उसमें आपने कांस्टेंट a ऐड कर दिया, ठीक है। अब अगर आपको y प्राइम निकालना है, ठीक है, तो क्या होने वाला है वो, ठीक है। अगर आपको डिफरेंशिएट करना है, y प्राइम निकालना है, तो वो क्या होगा, दैट विल बी नथिंग बट जो ऊपर वाला फंक्शन था एग्जैक्टली द सेम, उसका जो डेरिवेटिव था वही, ठीक है। सो दैट इज गोइंग टू बी नथिंग बट एफ प्राइम एक्स। सो बेसिकली हमारा कहने का मतलब क्या है कि अगर आप एक एग्जिस्टिंग फंक्शन में कोई एक कांस्टेंट ऐड कर देते हो तो उसका जो डिफरेंशिएशन होता है उसमें कोई फर्क नहीं होता है, ठीक है। सो आप चाहे इसका डिफरेंशिएशन कर लो चाहे आप इसका डिफरेंशिएशन कर लो, बोथ विल रिजल्ट इन एफ प्राइम एक्स, ठीक है। That is what our second rule is। So basically what is the second rule, if you add constants to a function the differentiation will not change। okay, so that's the second thing that you can remember। all right, so that's my second thing, ठीक है। अब इसका ग्राफिकली क्या मीनिंग होगा, इसका ग्राफिकली ये मीनिंग होगा फंक्शन चेंज नहीं होना, डेरिवेटिव चेंज नहीं होना। इसका मतलब क्या है कि कहीं ना कहीं आपके स्लोप सेम है, ठीक है। सो सपोज मैं ना एक फंक्शन को ड्रॉ करना चाहती हूँ, एक फंक्शन जो मेरा नॉर्मल फंक्शन था, लेट्स से दिस इज हाउ माय फंक्शन वुड हैव लुक्ड नॉर्मली, कुछ लेट्स से इस तरीके से, ठीक है, मान लेते हैं। और अब क्या किया, अब हमने क्या किया कि हर जगह फंक्शन एग्जैक्टली सेम है, ठीक है। सो लेट्स से दिस इज एफ एक्स एंड दिस इज एक्स। अब एग्जैक्टली फंक्शन यही है, ये कर्व यही है, बट क्या हो रहा है, बट मान लीजिए कि आपने हर जगह ना 1 ऐड कर दिया है। सो योर न्यू फंक्शन y इज एफ एक्स प्लस 1 मान लेते हैं, ठीक है। इट कुड बी एनीथिंग, इट कुड बी माइनस ऑल्सो, बट फॉर एग्जाम्पल लेट्स जस्ट सी दैट वन, ठीक है। तो क्या हो गया, बेसिकली मान लो कि यहाँ पे वैल्यू थी 1, अब नई वाली वैल्यू कितनी हो गई 2, यहाँ पे मान लो वैल्यू थी 1.5 तो यहाँ पे कितनी होगी 2.5। सो बेसिकली हर पॉइंट पे देयर हैज बीन अ एडिशन ऑफ 1 यूनिट, 1 यूनिट, राइट। हर पॉइंट पे एक एक यूनिट जो है फंक्शन की वैल्यू इंक्रीज हो गई है, ठीक है। सो आपका जो नया कर्व है वो कुछ इस तरीके से बन गया, मान लो, ठीक है। लेट्स से समथिंग लाइक दिस, ठीक है, कि हर पॉइंट पे दिस डिस्टेंस इज 1, दिस डिस्टेंस इज 1, दिस डिस्टेंस इज 1, इस तरीके से हो रहा है, ठीक है। तो आपको मान लो एक पॉइंट है
एक्स, इस पे डिफरेंशिएशन इस पर्टिकुलर कर्व का निकालना था। तो इसका डिफरेंशिएशन करोगे, इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे एक टेंजेंट बनाओगे और उस टेंजेंट का जो स्लोप होगा वो ही आपका डेरिवेटिव है। तो जब आप एक कांस्टेंट ऐड करते हो तो ये जो स्लोप है इसमें कोई चेंज नहीं आता है, सिर्फ आपका कर्व जो है वो या तो ऊपर शिफ्ट हो जाएगा या नीचे शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। सो उससे स्लोप में कोई चेंज नहीं आता है, एंड बिकॉज स्लोप में कोई चेंज नहीं आता है इसी वजह से आपका जो यू नो आई एम सो सॉरी फॉर द बैकग्राउंड नॉइस, इसी वजह से आपका जो डिफरेंशिएशन है वो एग्जैक्टली सेम ही रहता है जब आप एक कांस्टेंट ऐड कर देते हो, ओके। So that's why, if the slope you see here, if the slope you see here, both of them are exactly the same. Okay. So that is our second property. All right. So, moving on to the third rule, which is, so suppose constant है तो क्या होता है differentiation को we saw. अगर आप एक constant add कर देते हो then what happens we also saw. Now what if you multiply your function with a constant? In that case, what happens to your differentiation? ठीक है. So the third thing that I want to discuss is what happens. So let's say you have a function y equals to fx initially, ठीक है. ये आपका स्टार्टिंग में फंक्शन था, बट आप क्या कर रहे हो, आप एक कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर रहे हो इस पर्टिकुलर फंक्शन को, ठीक है। सो लेट्स से योर न्यू फंक्शन दैट यू हैव इज y इक्वल्स टू a टाइम्स fx, ठीक है। सो इसका जो डिफरेंशिएशन है y, जो न्यू फंक्शन है आपका, उसका जो डिफरेंशिएशन है वो क्या हो जाता है, वी वांट टू सी दैट, ओके। सो अगर आपका फंक्शन है y इक्वल्स टू a ऑफ fx वेयर a इज अ कांस्टेंट, सो जो डिफरेंशिएशन होता है y प्राइम, दैट इज नथिंग बट ये जो आपका कांस्टेंट है इट रिमेन्स एज इट इज, ठीक है। दिस इज a एज इट इज एंड you just differentiate this, you just differentiate by f prime x, ठीक है। that is how it operates when you have multiplied things, a function by a constant, ठीक है। so इस तरीके की चीज़ों को आप बहुत ही इजीली प्रूव भी कर सकते हो। कैसे, देखो, आपको डिफरेंशिएशन करके बताना है एट अ पॉइंट, एट एनी पॉइंट, कोई भी पॉइंट पे आप डिस्कस करना चाहते हो, ठीक है। सो लेट्स से यू वांट टू सी कि ये जो फंक्शन है, ये वाला जो फंक्शन है, इसका डिफरेंशिएशन क्या होने वाला है, ठीक है। सो बेसिकली आपको क्या निकालना है कि लिमिट h टेंड्स टू 0, यू वांट टू सी कि व्हाट हैपेंस। सो इसको मैं जो है ऐसे भी लिख सकती हूँ दैट दिस इज कैपिटल एफ एक्स, कैपिटल एफ एक्स एक नया फंक्शन है कैपिटल एफ एक्स जो इस तरीके के फॉर्मेट में है, उसका डिफरेंशिएशन आपको बताना है। तो आप क्या करोगे, अगर मुझे इसका डिफरेंशिएशन बताना है, मुझे बेसिकली कैपिटल एफ प्राइम एक्स बताना है कि ये क्या है। तो इसका मतलब क्या है, मुझे बस लिमिट h टेंड्स टू 0 कैपिटल x प्लस h माइनस एफ एक्स डिवाइडेड बाय h, ये क्या वैल्यू होगी, वही मेरे को बहुत ही क्लियरली आंसर दे देगा कि इसका डिफरेंशिएशन क्या होने वाला है, ठीक है। एंड आई नो व्हाट दिस पर्टिकुलर फंक्शन इज, ठीक है। सो मैं क्या करती हूँ, I can just replace, wherever x is by this particular function, ठीक है, and then try and see how these two things are related. तो मैं क्या कर सकती हूँ, देखो, ये कैपिटल f x प्लस h है, इसको मैं a मल्टीप्लाइड बाय स्मॉल f ऑफ x प्लस h लिख सकती हूँ। सेम थिंग कैन बी डन फॉर दिस ऑल्सो। सो वॉट डू, I do this. So a of small x plus h minus a of स्मॉल एफ एक्स डिवाइडेड बाय एच, ठीक है। आप यहाँ इस स्टेज तक आ गए, उसके बाद आपको क्या करना है, अब a तो कांस्टेंट है राइट, तो आपने a को कॉमन ले लिया, ठीक है। a को कॉमन लिया, अब जब लिमिट h टेंस टू 0 करोगे तो a तो a ही रहेगा राइट। और हमने देखा था कि आपके जो, जब आपको लिमिट निकालनी होती है तो प्रोडक्ट्स को आप इंडिविजुअली लिमिट निकाल सकते हो। तो a की लिमिट अलग से निकालो और बाकी पूरा एक्सप्रेशन है उसकी लिमिट अलग से निकालो। a की लिमिट तो a ही होगी, तो बाकी जो पोर्शन है उसकी लिमिट क्या हो जाएगी, सो उसकी जो लिमिट है वो h टेंड्स टू 0 स्मॉल f ऑफ x प्लस h माइनस f ऑफ x डिवाइडेड बाय h।
अब ये एक्सप्रेशन डज इट लुक फेमिलियर टू यू? लाइक ऑफ कोर्स, लाइक दिस इज फेमिलियर, राइट? क्योंकि ये क्या चीज है? दिस इज नथिंग बट स्मॉल एफ प्राइम एक्स, राइट? सो ये क्या हो गया? ए एफ प्राइम एक्स, ठीक है? सो हमने एक तरीके से पूरा का पूरा प्रूव करके दिखा दिया कि जब आप एक कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर देते हो तो ये जो डेरिवेटिव है ये सिर्फ a मल्टीप्लाइड बाय पुराना फंक्शन जो है उसका डेरिवेटिव हो जाता है, ठीक है? इसी तरीके से लाइक आगे जब हम प्रोडक्ट्स करेंगे, क्वोशंट करेंगे, सम करेंगे, सब्ट्रैक्शन करेंगे, सब में इसी तरीके से यही रूल्स फॉलो करके आपका डिफरेंशिएशन जो है आता है, ठीक है? सो व्हाट वी नॉर्मली यूज इज डायरेक्ट फॉर्मूलाज कि सम में सिर्फ सम कर दो डिफरेंशिएशन का, सब्ट्रैक्शन में सब्ट्रैक्शन कर दो, प्रोडक्ट का अलग रूल होता है, क्वोशंट का अलग रूल होता है, बट वो सारे जो आते हैं वो इसी तरीके से आते हैं, ठीक है? सो समटाइम्स इफ समबडी आस्क्स यू टू प्रूव दीज थिंग्स, आपको बाय डेफिनेशन ही जाना है कि ये भाई डेफिनेशन होती है डिफरेंशिएशन की, ये डिफरेंशिएशन की डेफिनेशन होती है, तो मुझे क्या करना है? जो जो भी चीजें मुझे दी हुई है, आई कैन जस्ट स्टार्ट अप्लाइंग ऑल ऑफ दिस थिंग्स हियर, एंड वन वे और दी अदर अगर मैं लॉजिकली स्टेप वाइज मूवमेंट करूंगी तो मेरे को कहीं ना कहीं जो मुझे चाहिए वो मैं प्रूव कर सकती हूँ, ठीक है? सो वी गो बाय दैट लॉजिक, ओके? ऑल राइट। सो अभी तक जो हमने 3 चीजें पढ़ी है उनको क्विकली लाइक अच्छे से कैसे लिख सकते हैं कि अगर आपका एक फंक्शन है a विच इज अ कांस्टेंट, अगर आप उसका डिफरेंशिएशन करोगे तो क्या हो जाएगा? दैट इज नथिंग बट 0, ठीक है? आपके पास एक फंक्शन है, सो बेसिकली डी बाई डी एक्स ऑफ व्हाट? दिस इज द साइन फॉर डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स, कैपिटल A प्लस एफ एक्स। अगर इसका डिफरेंशिएशन करना है तो ये क्या हो जाता है? दिस इज नथिंग बट डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स, राइट? सिमिलरली अब अगर आपको डी बाई डी एक्स विच इज द सिंबल फॉर डूइंग डिफरेंशिएशन, अगर आपको a टाइम्स f of x इसका डिफरेंशिएशन करना है तो दैट इज नथिंग बट a comes in front and then you do d by dx of f of x, ठीक है? सो इस तरीके से भी लाइक क्विकली ये सारे रूल्स को इस तरीके से लिखा जा सकता है, ठीक है? सो या ओके, सो आई होप ऑल ऑफ दीज रूल्स आर क्लियर। सो इसी तरीके से बहुत अलग अलग तरीके के फंक्शंस हैं जहाँ पे ये सब चीजें अगर आपको दिखें तो आप डायरेक्टली इनको अप्लाई कर सकते हो, ठीक है? अनदर रूल दैट वी हैव, द फोर्थ रूल दैट वी हैव इज द पावर रूल, ओके? पावर रूल, ओके। अब नाउ व्हाट पावर रूल इज? पावर रूल सेज कि सपोज आपके पास एक फंक्शन है एफ एक्स विच इज समथिंग लाइक दिस, एक्स रेज टू द पावर ए, ठीक है? एक्स रेज टू द पावर ए, ठीक है? अब जो है, अब जब आप इस पर्टिकुलर टाइप के फंक्शन को डिफरेंशिएट करोगे तो वो क्या होने वाला है, ठीक है? इफ यू डू दैट, इफ यू डिफरेंशिएट इट, व्हाट यू हैव टू डू, जो भी आपकी पावर है जस्ट ब्रिंग इट टू द फ्रंट सबसे पहले। सो हमने पावर को फ्रंट में लेके आए और फिर आप एक पावर को फ्रंट में लेके आए और यहाँ पे जो पावर है आपकी जस्ट रिमूव 1 फ्रॉम हियर, ठीक है? सो यू डू एक्स रेज टू द पावर a minus 1, ठीक है? दिस इज हाउ यू कैन डू द डिफरेंशिएशन। सो somebody if somebody says और बाय द वे यहाँ पे जो a है दैट इज अ कांस्टेंट, a is an arbitrary constant, ओके? सो ये कांस्टेंट है। अब a नेचुरल नंबर भी हो सकता है, a पॉजिटिव भी हो सकता है, a नेगेटिव भी हो सकता है, ठीक है? a कोई एक रैशनल नंबर भी हो सकता है, फॉर दैट मैटर दिस रूल अप्लाइज फॉर इरेशनल नंबर्स आल्सो, ठीक है? सो जनरल कोई भी वैल्यू ऑफ a के लिए जो है ये पर्टिकुलर रूल जो है एप्लीकेबल है, ठीक है? ऑल राइट। सो if somebody says find this, so for example if somebody is giving you this, that okay आप क्या करो, 3x पावर 5 इसका डिफरेंशिएशन करके बता दो, ठीक है? सो अभी तक आपको पता है कि चलो x पावर 5 का डिफरेंशिएशन कैसे करना है वो कर सकते हैं। अब 3 क्या है? 3 एक कांस्टेंट है। अब यहाँ पे आप क्या लगाओगे? ये वाला रूल कि कोई भी एक कांस्टेंट मल्टीप्लाइड है एक फंक्शन से तो कांस्टेंट को साइड में कर दो, बाकी जो चीज बच गई उसका डिफरेंशिएशन कर दो, ठीक है? सो बेसिकली आपको क्या करना है? 3 एज इट इज। अब आपको डिफरेंशिएशन करना है किस चीज का? x पावर 5 का, ठीक है? अब x पावर 5 क्या है? इट इज अ पावर। अब पावर का डिफरेंशिएशन कैसे होगा? ये वाली पावर आगे आएगी
और यहाँ पे जो भी पावर है उसमें से 1 सब्ट्रैक्ट होगा, ठीक है। सो बेसिकली क्या हो गया, 3, 5 फ्रंट पे आ गया, x पावर 5 में से 1 हो गया विच इज 4. सो बेसिकली दिस इज नथिंग बट 15x पावर 4. सो f प्राइम x इज दिस. इस तरीके से अलग अलग तरीके के आप डिफरेंशिएशन कर सकते हो ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ फंक्शंस यूजिंग ऑल ऑफ दीज फॉर्मूलाज, ठीक है। आई मीन लाइक दीज आर बहुत ही फ्यू, देर आर क्वाइट अ फ्यू रूल्स, इतने ज्यादा रूल्स नहीं हैं, ठीक है। बट एक बार अगर अच्छे से प्रैक्टिस कर लिया और एक बार दिमाग में सेट हो गया, फिर इट कम स्टार्ट्स टू कम नेचुरली टू यू, ठीक है। ओके, सो दैट वाज अ पावर फंक्शन, ठीक है। तो अब ये वाली चीज जो है एप्लीकेबल है, चाहे यहाँ पे पावर नेगेटिव हो, पॉजिटिव हो, कुछ भी हो, ठीक है। सपोज इफ somebody says, okay, so suppose you have this function, if you want to differentiate this, now what you do? अब देखो, अब चेक करो कि क्या इसको उस फॉर्मेट में लिख सकते हैं x पावर a. सो इसको मैं x पावर -2 लिख सकती हूँ. दिस इज इन द फॉर्मेट ऑफ x पावर a, राइट. सो अब ये क्या हो गया, इसको डिफ्रेंशिएट अगर करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, ये जो भी पावर है इसको यहाँ पे क्या करो, जस्ट टेक इट आउट इन फ्रंट. सो -2, राइट. एंड देन x पावर, यहाँ पे जो भी पावर है उसमें से एक माइनस कर दो, तो -2 और फिर एक और माइनस कर दो, तो कितना हो गया, -2 -1 विच इज -3. सो x पावर -3, राइट. अब ये हो गया है. अब इसको और कैसे लिख सकते हैं, -2 डिवाइडेड बाई x पावर 3. सो f प्राइम x लाइक दिस. ओके, सो सिमिलरली अलग अलग फॉर्मेट्स में ये x पावर 1/2 भी हो सकती है, ये x पावर -1/2 भी हो सकती है. सो दिस a could be any rational number, any natural number, positive number, anything. It can happen, it can be it can take any value like that, and then you just have to use this particular formula, ठीक है. All right, okay, सो आई होप दिस इज क्लियर. सो ये वाली चीजें बहुत ज्यादा रेगुलरली आपको यूज होंगी. तो हमने कांस्टेंट फंक्शन को डिफरेंशिएट करना सीख लिया. कुछ भी ऐड कर दो तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, कुछ भी मल्टीप्लाई कांस्टेंट कर दो तो कांस्टेंट बाहर आ जाता है, एंड देन यू डू द डिफरेंशिएशन ऑफ द रेस्ट, एंड देन हाउ टू डू द पावर रूल. पावर को डिफरेंशिएट कैसे करोगे वो भी हमने देख लिया है, ठीक है. अब हमारे पास द नेक्स्ट रूल दैट वी हैव इज व्हाट इफ आई हैव सम ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ फंक्शंस. अब मेरे पास 2-3 फंक्शंस हैं, उनका एडिशन हुआ है. अब उनका एडिशन का किस तरीके से हम लोग डिफरेंशिएशन करेंगे. जैसे 2 लिमिट्स को ऐड किया था तो वो लिमिट्स कैसे निकालेंगे. सेम वे we'll do the same thing with the differentiation as well. Okay, so the next rule that we have is how do you do the differentiation for sum and subtraction, basically sum and differences, ठीक है. So how do we do the difference of sum and differences? Actually, this is differentiation. So differentiation of sum and differences. Okay, ये आप किस तरीके से करोगे, ठीक है. So suppose आपके पास 2 फंक्शन है, ठीक है. Suppose if I have 2 functions f and g and they are both differentiable. डिफरेंशिएबल मतलब उनको डिफरेंशिएट किया जा सकता है. डिफरेंशिएट किया जाने का मतलब है कि जो भी पॉइंट पे आप डिफरेंशिएट करना चाहते हो वहां पे लिमिट एग्जिस्ट करती है, ठीक है. सो लेट्स से दे आर डिफरेंशिएबल, बोथ डिफरेंशिएबल एट अ पॉइंट x, ठीक है. तो अब अगर इन दोनों फंक्शंस को आप सम करो या फिर इन दोनों फंक्शन का डिफरेंस लो, तब जो रिजल्टेंट फंक्शन बनता है उसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, ठीक है. सो मान लो एक कैपिटल फंक्शन बना दिया विच इज सम ऑफ दीज 2 फंक्शंस, और एक कैपिटल जी फंक्शन बना दिया विच इज द सब्ट्रैक्शन ऑफ दीज 2 फंक्शंस. नाउ हाउ डू वी डू द डिफरेंशिएशन ऑफ दैट. तो ये जो सम है और ये जो डिफरेंस है ये दोनों भी क्या होंगे, डिफरेंशिएबल होंगे. दे आर ऑल्सो डिफरेंशिएबल. डिफरेंशिएबल माने इनको डिफरेंशिएट किया जा सकता है, ठीक है. आर ऑल्सो डिफरेंशिएबल एट पॉइंट x. और अब इनका जो डिफरेंशिएशन है वो क्या होगा. सो कैपिटल एफ एक्स एक फंक्शन हो गया क्या, स्मॉल एफ एक्स प्लस स्मॉल जी एक्स.
अब आपको एफ प्राइम एक्स अगर निकालना है तो वो क्या होगा, आप इंडिविजुअली जो फंक्शंस हैं उनका डिफरेंशिएशन कर दो और ऐड कर दो, दैट्स इट. सो दिस इज नथिंग बट एफ प्राइम एक्स प्लस जी प्राइम एक्स. एंड द सेम थिंग कैन बी अप्लाइड इन द सब्ट्रैक्शन पार्ट एज वेल. सो बेसिकली अगर आपके पास एक जी फंक्शन है जी एक्स, कैपिटल जी, विच इज द डिफरेंस बिटवीन दीज टू फंक्शंस, ठीक है. तो अगर आप इसका डिफरेंशिएशन करना चाहते हो, so if you want to differentiate this, that will be nothing but the subtraction of the differentiation of the individual functions. So f prime x और g prime x का जो भी डिफरेंशिएशन, एफ एक्स और जी एक्स का जो भी डिफरेंशिएशन है उसका डिफरेंस अगर आप ले लोगे तो वो जो है आपका रिजल्टेंट डिफरेंशिएशन हो जाएगा, ठीक है. अब इसको भी बहुत ही सिंपली आप यूजिंग द सेम टेक्निक बहुत ही आसानी से प्रूव भी कर सकते हो कि भाई ये ऐसे ही होगा. क्यों? क्योंकि अब आपको क्या पता है कि भाई आपको ये वाली चीज़ निकालनी है, ये एफ एक्स है और आपको एफ प्राइम एक्स निकालना है. तो इसका मतलब क्या है, आपको निकालना है कि लिमिट h टेंड्स टू 0 कैपिटल एफ एक्स प्लस एच माइनस कैपिटल एफ एक्स डिवाइडेड बाई एच, ये निकालना है, ठीक है. अब आप क्या करोगे, अब यहाँ पे ये जो फंक्शन है इसको इस तरीके से x प्लस एच ऐसे लिखा जा सकता है. सो आप वो करोगे, सेम थिंग आप यहाँ पे करोगे. फिर जो आपके जो टर्म्स हैं आप उधर उधर इनको कलेक्ट करोगे, प्रॉपरली बाइफरकेट करोगे, देन यू विल गेट दिस ओनली. सो बेसिकली अभी आप क्या कर सकते हो, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, दिस इज स्मॉल एफ एक्स प्लस एच प्लस जी ऑफ एक्स प्लस एच माइनस स्मॉल एफ एक्स माइनस स्मॉल जी एक्स डिवाइडेड बाय एच. और इस पूरे जो एक्सप्रेशन है इसकी लिमिट टेंडिंग टू 0, ठीक है. ठीक है, ये हो गया. अब मैं क्या कर सकती हूँ, मैं क्या करती हूँ, ये और ये इनको एक साथ लिख देती हूँ और ये इनको एक साथ लिख देती हूँ, ठीक है. सो मैंने किया ये, ठीक है, ये एक साथ हमने क्लब किए, प्लस जी एक्स प्लस एच माइनस जी एक्स, इनको एक साथ लिख दिया, डिवाइड किया एच से, और फिर हमको लिमिट निकालनी है, ठीक है. अब ये जो है, अब ये एक बड़ा सा एक्सप्रेशन बन गया, ठीक है. जब आपको एक्सप्रेशन ऑफ अ सम निकालना है तो आप क्या कर सकते हो, इंडिविजुअल. सो बेसिकली अगर आपको लिमिट निकालनी है एक बड़े एक्सप्रेशन की तो आप इंडिविजुअली जो एलिमेंट्स हैं उसकी लिमिट निकाल के ऐड भी कर सकते हो. वी सीन दैट इन द रूल्स फॉर लिमिट्स ऑल्सो. तो अब मैं क्या कर सकती हूँ, ये जो h है, देखो ये जो h है ये पूरे के डिवीजन में है, राइट. तो मैं इसको ऐसे लिखती हूँ कि ये h इसके डिवीजन में है प्लस ये h इसके डिवीजन में है. तो दैट सेम थिंग आई एम जस्ट डूइंग राइट हियर ओनली, ठीक है, ऐसे कर दिया, ठीक है. अब ये एक एलिमेंट है जिसकी एक लिमिट है और ये एक एलिमेंट है जिसकी लिमिट है, तो मैं इंडिविजुअली इनकी लिमिट्स निकालूंगी, ठीक है. और ये मैं बहुत ही क्लियरली देख सकती हूँ कि ये क्या है, दिस इज नथिंग बट एफ प्राइम एक्स स्मॉल एफ प्राइम एक्स. एंड इसकी जब मैं लिमिट निकालूंगी तो मैं बहुत ही क्लियरली देख सकती हूँ कि ये क्या है, स्मॉल जी प्राइम एक्स, ठीक है. So using these techniques you can easily prove things as well, ठीक है. It's not that difficult. पहली बारी में देखने में थोड़ा सा लग सकता है कि अरे ये क्या हो रहा है. So this is small f prime x and this is g prime x, ठीक है. So ये आपका एक्सप्रेशन हो गया. तो फाइनली द एक्सप्रेशन दैट यू गेट इज f prime x प्लस g prime x, ठीक है. So ये वाला एक्सप्रेशन हो गया और ये जो है ये एक्चुअली जी प्राइम एक्स है. सेम थिंग सेम तरीके से प्रूव करने की अगर इच्छा हो तो वो हम इसके लिए भी कर सकते हैं, ठीक है. सो बोथ फॉर दिस एज वेल एंड फॉर दिस एज वेल, बोथ कैन वर्क, ठीक है, विच एवर यू. सो आई हैव जस्ट टोल्ड यू द पाथ दैट यू कैन फॉलो टू प्रूव इट, ठीक है. चलो तो लेट्स डू एन एग्जाम्पल फॉर दिस, ओके. तो एग्जाम्पल क्या हो गया है कि मान लो आपके पास एक फंक्शन है 3x पावर 8 प्लस x पावर 100 डिवाइडेड बाय 100. अब ये एक फंक्शन है, ठीक है. अब ये जो बड़ा फंक्शन है इसका आपको डिफरेंशिएशन करना है,
यू कैन क्लियरली सी कि एक फंक्शन ये है, एक फंक्शन ये है, उन दोनों का सम जो है उसका डिफरेंशिएशन करना है. तो सम का डिफरेंशिएशन इज डिफरेंशिएट द टू फंक्शंस एंड देन ऐड देम. तो बेसिकली ये क्या हो जाएगा, आप इसको इंडिविजुअली डिफरेंशिएट कर लो और फिर इसको भी अलग से डिफरेंशिएट कर लो. ठीक है, एंड यू प्रोसीड लाइक दैट. अब मुझे पता है कि भाई ये पावर फंक्शन है, पावर फंक्शन को कैसे डिफरेंशिएट करना है वो हमें आता है. और अगर इन फ्रंट में कोई भी कांस्टेंट हो तो उसको वी जस्ट हैव टू टेक इट लाइक दैट, वो उसको साइड में ही रखना है और जो रेस्ट ऑफ द पोर्शन है उसको डिफरेंशिएट करना है. तो ये ऐसे, ये एज इट इज ही रहेगा और इसको हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे. सो ये क्या हो गया 3 एंड देन यू डू डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स पावर 8 प्लस, अब ये 1/100 यहाँ पे रह गया एंड देन यू डू अ डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स पावर 100. इस तरीके से आपको डिफरेंशिएशन करना है. ठीक है, अब क्या हो जाएगा, ये जो चीज़ है, अब इसको तो हमें करना आ गया. आपकी जो पावर है यू जस्ट टेक दैट इन फ्रंट एंड जो भी पावर है उसमें से आप 1 सब्ट्रैक्ट कर देते हो. सो 3, अब जब पावर इन फ्रंट आई तो 8, पावर सब्ट्रैक्ट हुई तो 8 - 1 इज 7 प्लस 1/100, पावर इन फ्रंट क्या आएगी 100. ठीक है, एंड देन अब पावर एक सब्ट्रैक्ट करनी है तो 100 - 1 इज 99. ठीक है, तो एक्स पावर 99 ये हो जाएगा. तो ये हमारा एक्सप्रेशन हो गया. तो दिस इज नथिंग बट 8 3 24 एक्स पावर 7 एंड देन 100 and 100 दे गेट कैंसल्ड एंड देन वी हैव नथिंग बट एक्स पावर 99. ठीक है, so this is basically the differentiation of this entire sum of two functions. ठीक है, सेम थिंग आप अगर डिफरेंशिएशन यहाँ पे एडिशन जो है, एडिशन की जगह सब्ट्रैक्शन होता तो क्या हो जाता, बस बीच में यहाँ पे माइनस आता. दैट्स इट, रेस्ट एवरीथिंग वुड हैव रिमेन्ड द सेम. ओके, डज दैट मेक सेंस? ओके, ऑल राइट. सो एक चीज और, अब जैसे ये एडिशन और सब्ट्रैक्शन यहाँ पे हमने सिर्फ 2 फंक्शंस के लिए किया, बट अब इट्स क्वाइट नेचुरल फॉर अस टू सी कि अब ये जी एक्स की जगह एक और फंक्शन होता एच एक्स, तो चलो छोड़ दो क्योंकि हम लोग एच यूज कर रहे हैं. लेट्स से व्हाट इज द जनरल, लेट्स से आर एक्स हमने यूज किया या फिर पी एक्स हमने यूज किया. ऐसे कितने भी आप फंक्शंस ऐड कर दो, दिस प्रॉपर्टी विल रिमेन, दिस विल कंटिन्यू टू होल्ड बोथ फॉर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन. सो जनरली अगर आपके पास n फंक्शंस हैं, ठीक है, सो बेसिकली अगर आपके पास बहुत सारे फंक्शंस हैं, पहला फंक्शन है f1x प्लस f2x, ऐसे ही ना n फंक्शंस हैं f(n)x. अगर आपको इस पूरे का डिफरेंशिएशन करना है तो वो क्या होगा, आप सिंपली क्या करो, ये जो फंक्शंस हैं इनके डिफरेंशिएशंस को ऐड कर दो, दैट्स इट. सो बेसिकली क्या करोगे, डी बाई डी एक्स ऑफ दिस फर्स्ट फंक्शन प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ सेकेंड फंक्शन, इस तरीके से आप चलते जाओ एंड देन डू डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एन एक्स विच इज द nth फंक्शन. ठीक है, सो differentiation of sum of function is sum of differentiation of those functions. Okay, so derivative of sum is sum of derivatives. Derivative of sum is the sum of derivatives. Okay, so that is the rule number, you can say rule number 5. ठीक है, so I hope it is clear to you now. अब जैसे एडिशन हो गया, सब्ट्रैक्शन हो गया, the most natural thing to deal with right now is product. What if you have two functions और उनको आपको मल्टीप्लाई करना है, तब जो है आप किस तरीके से डिफरेंशिएशन करोगे, let's see that. ठीक है, so suppose for example just to show you like क्या फॉर्मूला नहीं है. ठीक है, कई बच्चे क्या सोचते हैं कि चलो एक फंक्शन है एफ एक्स और एक फंक्शन है जी एक्स, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है. ठीक है, तो और ये जो मल्टीप्लिकेशन है इसका डिफरेंशिएशन करना है, तो क्या कर सकते हैं, जो नेचुरल एक्सटेंशन एडिशन और सब्ट्रैक्शन में किया था सेम चीज अप्लाई कर लेते हैं. क्या कि हाँ, दिस इज एफ प्राइम एक्स एंड जी प्राइम एक्स, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो तो आ गया, हमारा काम हो गया. बट दिस इज नॉट हाउ यू differentiate a product of two functions. ठीक है, just to give you an example, suppose like एक function है fx is let's say 2x
और एक फंक्शन है जी एक्स विच इज यू नो एक्स स्क्वायर लेट्स से, ठीक है। ओके, सो अब आपको क्या करना है, एफ प्राइम एक्स अगर कोई पूछे तो क्या करना है, एफ प्राइम एक्स क्या होगा इसके लिए, एफ प्राइम एक्स इज 2, कैसे, अब देखो 2 एज इट इज रह गया, और ये जो x है उसका डिफरेंशिएशन क्या हो गया, x रेज टू द पावर 1 है, इसका अगर आपको डिफरेंशिएशन करना है तो क्या होगा, 1 आगे आ जाएगा और 1 में से 1 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, सो 1 आगे है, 1 में से 1 सब्ट्रैक्ट हुआ तो 0, x पावर 0, एनीथिंग पावर 0 इज 1 ओनली, सो दिस इंटायर एक्सप्रेशन इज 1, सो इसीलिए यहाँ पे ये सिर्फ 2 रह गया, ठीक है, सो 2 रह गया, और x पावर 2 जो है उसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, दैट इज नथिंग बट, अब ये जो 2 पावर है दिस कम्स इन फ्रंट 2, और x जो है 2 में से 1 माइनस किया तो 1, सो 2x, ये आपकी एक्सप्रेशन हो गया, ठीक है। अब अगर मैं जो ये वाला फॉर्मूला है अगर ये यूज करके डिफरेंशिएशन निकालूं तो क्या होना चाहिए डिफरेंशिएशन, दिस विल बी व्हाट, दिस 2 एंड दिस 2x विच इज 4x, 4x जो है हमारा डिफरेंशिएशन आना चाहिए, ठीक है, ये हो गया एक तरीका। दूसरा क्या है, अब मुझे ये जो प्रोडक्ट है इसका डिफरेंशिएशन निकालना है, मैं इनका प्रोडक्ट वैसे कर लेती हूँ, सो 2x इंटू एक्स स्क्वायर क्या होता है, 2 टाइम्स एक्स पावर 3, एक्स एंड एक्स स्क्वायर, सो एक्स पावर 3 हो गया, सो ये मेरा एक रिजल्टेंट फंक्शन है और मुझे इसका डिफरेंशिएशन करना है। अब इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, 2 एज इट इज, एक्स पावर 3 है, ठीक है, सो पावर कम्स इन फ्रंट, पावर आ गई 3, एंड पावर में से 1 माइनस कर दो, सो 3 माइनस 1 इज 2, सो एक्स पावर 2, सो एक्चुअली क्या हो गया 6x स्क्वायर, सो एक्चुअल डिफरेंशिएशन आना चाहिए था 6x स्क्वायर, ठीक है, बट यू नो अगर ये आइडिया लगा दिया जाए तो आपका आंसर आ रहा है 4x, सो दिस इज जस्ट टू इंश्योर एंड शो यू दैट these two are not equal, so you should not do it like that, ठीक है, इसका अलग फॉर्मूला है, so you just keep that in mind, so this is not to be done, इस तरीके से नहीं करना है, ठीक है। अभी हमने देख भी लिया कि क्यों नहीं करना है, क्योंकि ये करोगे तो 4x आ रहा है आंसर और ये असली आंसर है 6x स्क्वायर, ठीक है, ऑलराइट।